Hello friends, how are you? I am Sharad Kaur. Congrats all of you in my YouTube channel. आप सभी का इस चैनल में मैं स्वागत करता हूँ. Today we are going to learn the next topic of ninth science and this topic belongs to biology. आज हम नाइन्थ के बायोलॉजी का एक टॉपिक लर्न करने वाले हैं एंड दिस टॉपिक जो है दिस टॉपिक इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Living organisms are classified into three types. Actually, we classified living organism in two types only. First one plants and second one animals. But remember yourself, third type of living organism, they are very minute in size. We call them microorganisms. Therefore, microorganisms are also type of living organisms. It means there are three types of living organisms. First one plants, second one animals and third one माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लासिफिकेशन वी हैव स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड. 8th स्टैंडर्ड में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया है. बैक्टीरिया है, फंगाई है और वायरसेस. नाउ इन दिस स्टैंडर्ड मीन्स इन 9th वी आर गोइंग टू classify the next living topic living organism, that is plants. And in the next year means in 10th we will learn द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. देखो 8th में आपने क्या किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी किया है. इस ईयर में और इन करंट ईयर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. एंड इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड और इन 10th वी विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. और 10th में क्या एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं. तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ साइंस का 6th चैप्टर. 6th चैप्टर है नाइन्थ साइंस का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. देखो व्हाई क्लासिफिकेशन इज इसेंशियल. क्लासिफिकेशन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, लिविंग थिंग का क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वी आर अनेबल टू स्टडी ईच एंड एवरी लिविंग थिंग इंडिविजुअली. हम सेपरेट तो लिविंग थिंग के ईच और एवरी लिविंग थिंग वी कैन नॉट स्टडी. हर लिविंग थिंग का हम स्टडी नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ लिविंग स्पीसीज आर अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड. यप, ये वर्ल्ड में बहुत लिविंग थिंग्स क्या है अवेलेबल है. देयरफॉर वी कैन नॉट स्टडी देम प्रॉपरली. हम उसका स्टडी नहीं कर सकते. देयरफॉर वी क्लासिफाई देम. इसलिए हमने उसको क्या क्या क्लासिफाई किया. तो पहला क्लासिफिकेशन हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किया, सेकंड प्लांट्स में और थर्ड एनिमल्स में किया. उससे पहले लिविंग थिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है, living organisms are basically classified into two types. First one prokaryotic living organism, prokaryotic and second one that is eukaryotic. What is by prokaryotic? Prokaryotic means this such type of animals have a nucleus or nuclear membrane existed in the earlier stage, in the pre-stage. ये जो कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. और इसमें न्यूक्लियस ये जो एनिमल्स है प्रोकैरियोटिक उसमें न्यूक्लियस जो है वो पहले एग्जिस्ट था. बट एट करंट कंडीशन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टोटली एब्सेंट. That animals or that living organisms are included in prokaryotic, and those living organisms have a true nucleus, true nuclear membrane. U means true. Those organisms have a real nucleus and nuclear membrane. जिसमें carrion means nucleus, जिसमें real nucleus है और real nuclear membrane है.
all that animals are classified, sorry, all that animals are included in eukaryotic. Which are the animals included in prokaryotic? All the animals belongs to Monera group. जो prokaryotic animals है, the group of prokaryotic animals are called as Monera. Second, eukaryotic are again classified into two types. ये जो eukaryotic है, eukaryotic again classified into two types. First one unicellular and second one multicellular. देखो unicellular and multicellular, you are familiar with this term. Unicellular means their body is made up of single cell and multicellular means their body is made up of more than two or more cells. जिसका body two or more cells से बना होता है, they are called as multicellular, and the body of living organisms are made up by single cell, they are called as unicellular. Eukaryotics again classified into two types, unicellular and multicellular. The animals included in the unicellular group are called as protista. अमीबा, पैरामीशियम जो होते हैं, ये जो प्रोटिस्टा है, these animals belong to unicellular and the group of eukaryotic. And these multicellular animals again classified into two types. ये जो multicellular है, ये multicellular animals again classified into two types. इसके और दो types होते हैं. First one with cell wall and second without cell wall. With cell wall and without cell wall. देखो with cell walls, with cell wall means they have a cell wall. सेल मेम्ब्रेन तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मगर द एनिमल्स इन द ग्रुप, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली एनिमलिया जो ग्रुप है, और एनिमल्स हैव अ लैक ऑफ सेल वॉल. एनिमल सेल जो है उसमें सेल वॉल नहीं होता. देयरफॉर ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. एंड विथ सेल वॉल जो होते हैं, विथ सेल वॉल अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ये विथ सेल वॉल जो है उसके और दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन autotrophs and second one heterotrophs. Autotrophs and heterotrophs, and second one heterotrophs. Autotrophs means those living organisms can make their own food are called as autotrophs, and those organisms do not unable to make their own food are called heterotrophs. Animals are also heterotrophs. Why they are not included in this group? Because animals do not have a cell wall. These animals are also depend on the other, but they have a cell wall. All the group of fungi और fungi जो होते हैं वो cell wall होता है, but they are heterotrophs. And autotrophs, all the type of plants, plantae or plants are the type of living organisms have a cell wall. They have a chlorophyll in their body, and because of the chlorophyll or chloroplast they can make their own food, so they are called as autotrophs. And the animals do not have a cell, a chloroplast or chlorophyll. We call them animalia or animal group. Animal or animalia. In this way, living organisms are classified into 5 kingdoms. First one Monera, second one Protista, third one fungi, fourth one plants, and fifth one that is animalia. Living organisms or living things are classified into 5 kingdoms. R.H. Whitaker classified the living organism into 5 kingdoms according to the criteria, that is they have a
well defined nucleus or nuclear membrane. Second, how much the number of cells present in their body. Third one, if they have cell wall or without cell wall. And last one, they are make their food or they can make their food or not. वो फूड बना सकते हैं और दूसरे पे डिपेंड होते, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्लोरोफिल. In this way, living organisms are classified into 5 kingdoms. And who classified the living organisms into 5 kingdoms? R.H. Whitaker. Whitaker ने इन living organisms को 5 kingdom में क्या किया? Classification किया. Today we are going to learn the classification of 4th kingdom, that is plants. आज हम किसके बारे में स्टडी करने वाले? जो 4th kingdom है प्लांट्स, वो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, प्लांट्स का भी. और देन प्लांट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया. डिफरेंट क्राइटेरिया से प्लांट्स का भी और क्लासिफिकेशन किया है. एचर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड द प्लांट्स. एचर जो साइंटिस्ट है, उसी साइंटिस्ट ने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया है. हाउ डिड ही क्लासिफाई द प्लांट्स? प्लांट का क्लासिफिकेशन उसने कैसे किया? ही यूज सम क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए उसने कुछ क्राइटेरिया यूज किए. विच आर द क्राइटेरिया यूज बाय एचर फॉर क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन के लिए एचर ने कौन से क्राइटेरिया यूज किए? फर्स्ट वन, द प्लांट्स bear or seed or not, means they have initially we classify the plants. हमने 5th और 6th में प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया है, मगर वी क्लासिफाई द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू सम एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. कौन से एक्सटर्नल कैरेक्टर्स? सपोज इफ द प्लांट्स bear the flower, we call them flowering plants. If plant do not have a flower, bear the flower, we call them non-flowering plants. Second class criteria we have to use according to their completing lifespan, और completing their lifespan, उसका प्लांट्स का लाइफ स्पैन जो है वो कितने ईयर्स में कंप्लीट होता है. अकॉर्डिंग टू दैट लाइफ स्पैन वी अगेन क्लासिफाई द प्लांट्स इनटू 3 ग्रुप. फर्स्ट वन, एनुअल प्लांट्स, जो प्लांट द प्लांट्स विच कंप्लीटेड द लाइफ स्पैन विद इन ईयर, वी कॉल देम एनुअल. सेकेंड, बाइनोअल प्लांट्स. बाइनोअल प्लांट्स मीन दे कंप्लीटेड their lifespan within 2 years. And perennial means they complete their lifespan in, or they require lot of number of years. जो बहुत ज़्यादा ईयर्स तक क्या होते हैं, सर्वाइवल अलाइव होते हैं, वो पेरिनियल्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन वी क्लासिफाई द प्लांट्स इनटू 3 ग्रुप्स. अगेन वी क्लासिफाई द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड साइज ऑफ द स्टेम. हमने प्लांट का और भी क्लासिफिकेशन किया है 5th और 6th में. 5th 6th 7th तक हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ किया है. पहला फ्लावर कंसीडर किया था. सेकेंड वन उसका लाइफ स्पैन कंसीडर किया था. थर्ड वन अकॉर्डिंग टू साइज एंड हाइट ऑफ द स्टेम. दोज प्लांट्स हैव अ वेरी फ्रैगिल स्टेम, शॉर्ट स्टेम. जो प्लांट्स का स्टेम बहुत कम होता है, हाइट कम होती है स्टेम की, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वी कॉल देम हर्ब्स. तो उसी प्लांट को हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं. सेकेंड, दोज प्लांट्स हैव अ फ्रैगिल स्टेम एंड दे ग्रो अलोंग विथ ग्राउंड. जो प्लांट्स का स्टेम फ्लेक्सिबल होता है, दे ग्रो अलोंग विथ ग्राउंड. जो ग्राउंड के साथ ग्रो होते हैं, वी कॉल देम क्रीपर्स. Third type of plant we classify, the plants have a strong stem, जिसका stem strong होता है but height क्या होता है stem का? कम होता है, we call them shrubs. And last type of plant जो है जिसका stem strong होता है और height भी ज़्यादा होते हैं, we call them trees. In this way we classify the plants according to different criteria. But in this chapter we are going to classify the plants इन डिफरेंट क्राइटेरिया. हम इसी चैप्टर में जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने वाले, वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीड. दोज प्लांट्स हैव अ सीड, जो प्लांट्स को सीड आता है या नहीं, अकॉर्डिंग टू सीड वी क्लासिफाई देम इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स.
Second, cryptogams again classified into next part, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. ये जो phanerogams है, that phanerogams again classified into two types, that is angiosperm and gymnosperm. उसी के अगेन क्लासिफिकेशन होते हैं दो टाइप्स. जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन में फिर कॉटिलिडॉन के अकॉर्डिंग टू कॉटिलिडॉन, जिसका कॉटिलिडॉन सीड से जो कॉटिलिडॉन होता है वो सिंगल होगा तो मोनोकॉटिलिडॉन, एंड जो टू सीड्स स्प्लिट हो तो उसका सीड स्प्लिट होगा तो डाइकॉटिलिडॉन होगा. सीड्स बेयर फ्रूट के अंदर है या बाहर है, बेयर इनसाइड द फ्रूट और सीड बेयर इनसाइड द फ्रूट और आउटसाइड द फ्रूट, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. और प्लांट्स को सीड मीन्स फ्लावर आता है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द सीड the cryptogams and phanerogams, means different criteria is used by nature for classification of these plants. ये प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए नेचर ने कौन से क्राइटेरिया कंसीडर किए हैं. फर्स्ट वन सीड करंट क्राइटेरिया, सेकेंड वो सीड फ्रूट में आता है या नहीं, थर्ड सीड जो है वो सीड के वो सीड स्प्लिटेड होता है या नहीं. ये सब क्राइटेरिया कंसीडर करके नेचर ने प्लांट्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन किए. दिस क्लासिफिकेशन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट वर्चुअल क्लास. वो क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में पढ़ने वाले हैं. आज खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम. कौन से 5 किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. वी स्टडीड अबाउट Monera, Protista and fungi in the 8th standard. In current standard or in 9th we will continue or we will classify the plant kingdom, and in next standard or in 10th where we will continue, we will classify the kingdom Animalia. Okay, if you like this video, share it, like it, make comments on it, subscribe my channel, press bell icon, that's why you will get latest notification immediately. Thank you.